Hello. Hello. Hello, good morning, sir. Thank you. How are you? I'm good, sir. How are you? Good. Okay. So, any doubts so far? Like, have you Sir, solved the questions? first exercise का question number 7. First exercise, Yes, sir. Exercise 31A. 31A. Question number 7. 7. Okay. Explain. Let me share the screen with you. इसमें क्या दिया हुआ है? Explain why for all a greater than 0 and a is not equal to 1. So these two Yes, sir. conditions are excluded in logarithm always if a is base. Okay, if a is base. Why? Because we cannot figure out the log of negative number. Okay, we cannot figure out the log of negative number. Okay, like why Yes, I'm sir. saying that, if suppose let's say what is the definition of logarithm. If suppose x raised to a is equal to y, right? Then how do we convert it into log? Log Y Log with base y with base x is is equal equals to to A. a, right? So, like, you cannot take y as negative because we know the nature of the log function on graph, that is like this, right? This is the nature of the log function. Am I right? So Yes, the sir. log function is defined for all positive x values. So here y cannot be negative, okay? And like if I'm saying this y cannot be negative, so basically we have like log y to the base x. This can be written as log y upon log x also. Okay, you can make note this thing because this is important, really important. This is called change of base rule. Hmm? Change of base rule. Yes, So here base is like x, right? Base is x. So x shouldn't be negative here also. The domain of this function log is always positive. So if we have change of base rule, so this x shouldn't be negative, right? So therefore they always mention that a should be greater than 0 and it should not be 1, because if you take x as 1, okay, if you take x as 1, then log 1 is always 0. Okay, log 1 is always 0, and that will make this denominator equal to 0. Okay, so that will be like not defined function. Hmm? You cannot have any number like 0 in the denominator. You cannot have 0 in the denominator. So this is not defined. So that's why they always give you a greater than 0 and a should not be 1. A is not equal to 1. Now what they are saying, explain why, so why log 1 to the base a is 0. They are asking this, right? So just a second. So why log 1 to the base a is 0. So as per the definition, can you convert it into exponent form? What would be the exponent form of this?
A power 0 is equal to 1. A So raised A to 0 0 is is equal equal to to 1, 1. right? And since A is not equal to 1 and A is positive number, right? So any the number raised to 0 will always be 1, right? This we know. Any number raised to 0 is always 1, which is true, right? So Yes. therefore log 1 to the base A is 0. Okay, for any base you consider other than 1, okay, the value will be 0 because this is true. Am I clear? Yes, sir. Okay, like if you take any number 5 raised to 0, that is also 1, minus 7 raised to 0, that is also 1. Any number you can take, but not negative, because they already mentioned that A is greater than 0. Okay, now what Yes. about this? The second part, if you apply the definition, hmm, what would be the how would you convert that in exponent form? Niche. A, that is A, base A, A raised to power A is equals to A raised to power 1, not A. A raised to power 1 is equals to 8. So this is true, isn't it? If you convert this into exponent form, this is true. Therefore, log A to the base A is 1. Okay. So for any base other than 1 and for positive number, this will always be 1. So if I say log 7 to the base 7, what is the value of this? 1. 1. So log any number like 9 to the base 9 is also 1. So basically, how do we understand that? That is first from the definition of logarithm. We can convert it into exponential form, and that is absolutely true, right? We know that a raised to, if you take first power, then only the answer is a, right? So you can understand another way also, like writing log 9 to the base 9 in the form of log 9 upon log 9. Okay, so that will cancel out and that will give you 1. So you understand change of base rule also here. Okay, so change of base rule, what do you mean by change of base rule? So basically, what is the base in this term? Log 9. 9. The base is 9, right? And what is the base in this, in these term, like in numerator and denominator? Log 9. Base, I'm talking about base. What is the 9. base? No, here in numerator and denominator, when I have written it in fraction, the base is, you can take any base. Do you understand? But if I don't mention base, it is supposed to be 10. Okay, if I don't mention base, it is supposed to be 10. But you can take any base as per the convenient or as per the question demand. Okay, so these few information I have given you as an add-on, because those are really important. But this question is very simple. Did you understand this? Since we have Yes, converted sir. into it in exponent form, and those are true, that's why uh, you know the given statements are true. Okay. Yes, sir. Okay, now we have already started 31b. Have you solved that? Yes, C करनी है आज rules for logarithms. C. Okay, yeah. Yes, sir. Yes. C. So I explain you the some basic concept of, you know the rules for logarithm. What do you mean by rules? रूल्स क्या होते हैं, मतलब मैथ्स में अगर आपको रूल बोलना है तो क्या रूल होते हैं? Rules is basically operations. How do we deal with addition, subtraction, multiplication, division? So in math there are only four rules, right? Addition, subtraction, multiplication and division. इसके अलावा और कोई रूल नहीं है ना? इतना ही काम करते हैं ना हम मैथ्स में.
Yes, बस sir. यही है कि चैप्टर क्या है, उसमें किस तरह से करना है वो देखना है, ठीक है। काम इतना ही करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। So rules is basically how to add to logarithmic function, how to subtract, how to divide, how to multiply. So if suppose we have, let's say, log x to the base a and log y to the base b. Okay, my end product is like, what would be log x to the base? Okay, I have taken b. It should be a only. The base must be equal, then only we can operate on it. Okay, you will understand that. So log x y, okay, the product to the base a, or what is log x to the base a plus log y to the base a, or what is log x divided by y to the base a, and what is log x to the base a minus log y to the base a. Do you understand? So I have written plus minus, right? Multiplication of the number, division of the number. So what are the relation between them, that we have to understand? Can we like directly, if suppose the problem is, what is the problem basically? If can I write log x, you first understand the problem. If we have log x plus log y to the base a, can we write this as log x plus y to the base a? Can we write this? Is it true? That is really a question. Do you understand this? Because we are not sure. We know that 5 plus 2 is equal to 7. That's simply added up. But we are not sure whether its logarithmic numbers will also be added up and that will produce the same number as of the right hand side here. Okay, so this is really a question. Otherwise there should not be any rule. The rule which we have been following will be applicable directly, right? But there is some discrepancy, changes. There is some changes. Okay, so what we have to understand, let's convert this. Let's take this as m. Okay, just I'll follow your book. Otherwise, you may confuse after my class. So let's take the first term as p and the other term as q. Okay. Yes, sir. So how would you apply the definition of logarithm here? Can you convert it into exponent form? A की power b is equals to x. हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर p p, ठीक है ना। और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की a raised पावर q. q हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एक्स वाई, आई एम लुकिंग फॉर एक्स वाई, डू यू अंडरस्टैंड, एज वेल एज आई एम लुकिंग फॉर x डिवाइडेड बाय y. So what we'll do, let's multiply them. Okay, let's multiply this first and second term. Okay, so xy is equal to 1 into 2 will implies xy is equal to a की power p into a की power q. और आप कुछ कर सकते हो इसमें आगे, एक्सपोनेंट का कुछ रूल्स हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस। Yes, sir. तो क्या कर सकते हैं? A p plus q. वेरी A गुड, की power p into q. यस। सो एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर पी प्लस q. क्यू, ठीक है। तो इसको एक सिंगल टर्म समझो और इसको भी एक सिंगल टर्म समझो। नाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू लॉग फॉर्म बाय डेफिनेशन? एक्स वाई को एक सिंगल टर्म समझो और पी प्लस क्यू को एक सिंगल टर्म समझो, तो फिर क्या होगा, ये लॉग फॉर्म में आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? Log a की लॉग, power लॉग, log a with base xy. नो नो नो, बेस इज ए, नो,
सी बेस इज ए देखो बेस है ना यहाँ पे, कहीं पे भी आप देखो, यहाँ पे भी जब आपने कन्वर्ट किया था तो बेस क्या था, ए था ना, तो ए को ही बेस रखा ना आपने, है ना। एक्स वाई सो लॉग इन द बेस ए एक्स एक्स वाई वाई इज इज इक्वल इक्वल टू, टू पी प्लस क्यू यस, पी प्लस क्यू। क्यू और पी क्या है, पी हमने कुछ अज्यूम किया हुआ है इन द बिगिनिंग, दैट इज log लॉग एक्स x बेस to the पे base a, एंड q क्या है, log वाई y to बेस the base a, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे दैट log xy to the base a is basically log x to the base a plus log y to the base a। आप समझे बात। तो ये दोनों टर्म देखो इक्वल है, कौन से टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, बात समझे। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, चलो एक एग्जांपल भी यहीं पे बता दूं, नहीं तो मे बी कंफ्यूज लेटर। इफ सपोज वी हैव 3 into 5 to the base 2, any base, okay, 2 it should be greater than 0 as well as it shouldn't be 1, the base shouldn't be 1, right। so 3 into 5, तो इसको आप कैसे बाइफरकेट करोगे, how would you bifurcate this, how would you apply the law of logarithm। so this will be basically log 3 to the base 2 plus log 5 to the base 2। do you understand this, ठीक है ना, सिंपल है ना। आप अगर मल्टीप्लिकेशन है इनसाइड, तो आप क्या करोगे, सीधा वो सेपरेट करके उन दोनों को ऐड कर दोगे, यही रूल है, ठीक है। और ये रूल कैसे निकला है, तो ये प्रूफ है उसका, यहाँ पे दिया है हमने, यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिवीजन पार्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वैसे ही 1/2 कर दो, ठीक है। 1/2 करोगे तो आपको x बाय वाई मिल जाएगा। तो x बाय वाई इज इक्वल टू ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू क्यू क्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, डायरेक्टली, यस सर है ना, वही बात है ना, माइनस हो जाता है। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली भी कभी पढ़ा होगा स्कूल में, यस सर 2 की पावर ले लो और कुछ इंटू 2 की पावर और कुछ ले लो, तो 2 की पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी इसको लॉग में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लॉग, वी विल कीप द बेस सेम, ओके। सो log in the base a of x by y is equal to p minus q। क्यू तो p क्या है, log x to the base a माइनस log y to the base a। आप समझे बात। तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब डिवीजन रहेगा, सो यू कैन डायरेक्टली सेपरेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस साइन, पुटिंग log एंड बेस। एंड अगर प्रोडक्ट रहेगा, सो यू विल सेपरेट देम बाय पॉजिटिव साइन। इज इट क्लियर, यस सर ओके। सो यू जस्ट डाउनलोड दिस, बिकॉज जो क्लास में पढ़ा हुआ चीज़ रहता है ना, वो अच्छे से समझ में आता है। बाद में यही चीज़ आप बुक में थोड़ा इधर उधर करोगे तो घबरा जाओगे। डाउनलोडेड, कर लिया सर वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। बहुत आसान है कि नहीं, कुछ यस डिफिकल्टी है इसमें। आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ, तो ये इतना डिफिकल्ट है नहीं आपके लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 31C। सो 31C में बहुत सारी क्वेश्चन है, कौन सा बता दूं। इसमें हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 मैं कर दूंगा, एक मैं कर दूंगा, आप बोलो तो 3 आपको करनी है। थोड़ा हमको कम बर्डन दो। सर एक और भी है ना इसके अंदर, तीसरा रूल, तीसरा रूल, लॉग विद बेस ए एक्स की पावर एन हाँ 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 हाँ, अच्छा ये मिस हो गया क्या। अच्छा कोई बात नहीं, इसको भी ले लेते हैं। तो इसमें आप ऐसा कर दो ना कि x क्या था, हाँ, अभी यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, log
एक्स टू द बेस ए, ये तो बात समझ में आ गई ना आपको, है ना? ये Yes, बात तो sir. समझ, ये तो हमने अज्यूम ही किया हुआ है। अब इसका ये ले लो, यू नो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, A raised to P. ए रेज टू पी, है ना? अभी आप Yes, क्या sir. करोगे और बताओ क्या करोगे? एक्स रेज टू एन चाहिए ना, क्या चाहिए हमें? एक्स रेज टू And एन चाहिए ना, तो ले लो ना एक्स रेज टू एन, क्या दिक्कत है? तो पावर एन ले लो, पावर एन ले लिया, hmm, तो ए रेज टू क्या हो गया, पी रेज टू hmm, एन, है ना? तो ये क्या हो yes, जाएगा, ए रेज टू पी एन। yes, अब sir. एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए रेज टू पी एन हो गया। हाँ, Yes, sir. तो इसको फिर उसमें कन्वर्ट कर दो लॉग में, कैसे करोगे? यहाँ से लॉग, Log, लॉग का डेफिनेशन लगाओ। log बेस, with base 8. ये एक नंबर समझो, ये एक नंबर समझो, ठीक है? यहाँ का बेस मत लेना, बेस क्या है अपना, ए है ना? Log with base A यस, log इन बेस ए ऑफ एक्स रेज टू of एन x इज is इक्वल equal टू to P raised Pn. पी एन को मैं एन पी लिखूंगा, तो एन पीछे चाहिए मुझे, और पी क्या हो जाएगा, पी तो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, Log x. ठीक है ना? Sure. तो ये बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इनफैक्ट, ठीक है? ये इतना सिंपल है कि इसको लर्न करने में कुछ मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है? और इसलिए मैं ये स्किप कर दिया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ऊपर पावर है एन का, तो वो पीछे आ जाता है, बात खत्म, ठीक है? हम्म? Yes, लेकिन sir. प्रूफ आप कुछ भी देखो, लॉग को लेके आप कुछ भी प्रूफ करना है ना, तो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ये बात आप समझ लो, क्योंकि उसका बेस तो एक्सपोनेंट ही है ना। लॉगरिथम कहाँ से आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आया ना log, है ना? बोथ आर Yes, इंटर कन्वर्टिबल, वी हैव सीन द ग्राफ आल्सो, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट? ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बातें समझ गए ना आपको, कोई दिक्कत नहीं yes, ना sir. इसमें? ओके, तो 31C, कौन सा क्वेश्चन कर दूं? एकदम डिफिकल्ट ढूंढ के देना। Sir, D part. डी, ओके, बहुत ही डिफिकल्ट ढूंढ दिया आपने तो। राइट दैट एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो आप दिल्ली में रहते हैं ना? Yes, sir. तो आज से दिल्ली तो लॉकडाउन खुल गया है, Yes, sir. कांग्रेचुलेशन। ऑड इवन पे चल रही हैं गाड़ियाँ। Yes, sir. चलो, हम तो अभी भी फंसे हैं मुंबई में, हमारे इधर तो ज़्यादा ही समस्या है। Hmm. चलो ठीक है, तो डी क्या है, लॉग 8 टू द बेस 3 प्लस लॉग 7 टू द बेस 3 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3। ठीक है, देखो बेस इक्वल होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा रूल में कि बेस इक्वल रखा था मैंने। Yes, अगर sir. बेस, मैंने बी लिखा भी था, फिर उसको मैंने रब किया, क्योंकि अगर बी रहेगा तो फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे इंडेक्स को, ठीक है ना? Okay, so now you just tell me what would be the how do combine these two terms, by which rule? The rule is very simple. If terms are added up, so what we'll do, we simply Log. write 8 into 7. Am I clear? Yes, है ना? sir. प्रोडक्ट हो जाएगी, और ये माइनस लॉग 4 टू द बेस 3 है, तो अभी माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाता है, Divide. डिवीजन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 अपॉन 4, 4. ठीक है ना? तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंगल लॉगरिथम बोला हुआ है, ठीक है ना? सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो आप
सिंप्लीफाई कर दो जितना सिंप्लीफाई हो सके। 4 टू ज़ा 8, सो लॉग 14 टू द बेस 3। 3। ठीक है, सिंपल है, काफी सिंपल है। एक और कर दूंगा, जरा ध्यान से दो, कुछ डिफिकल्ट दो इसमें, सर देखो। एच। एच, हाँ एच रहता है हमेशा डिफिकल्ट। ओके, चलो एच करते हैं। तो एक मिनट। ओके, सो एच में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 + 2 log 3 टू द बेस 4 माइनस 3 log 5 टू द बेस 4। देखो बेस क्या है इसमें? बेस 4 4। है ना? जितने भी लॉगरिथमिक टर्म है, द बेसिस आर 4। ओके, द बेस इज 4। अगर बेस डिफरेंट होगा तो हम साथ में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। देन वी कैन डू इधर चेंज ऑफ बेस रूल, और दैट वुड बी द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे बेस सेम है तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। अच्छा, अब ये लॉग वन, ये वन है, वन, जस्ट वन है, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? इधर तो लॉग है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सर लॉग 4/4, लॉग 4 विद बेस 4। यस, वेरी गुड। तो जैसे बिगिनिंग ऑफ द सेशन में ही हमने देखा था कि log a टू द बेस a इज 1, राइट? तो ऐसे ही आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने बोला भी था कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन विल कंसीडर दैट। तो यस यहाँ सर। पे बेस 4 है, हर जगह तो हम बेस 4 ही लेंगे, लेकिन 1 आने के लिए वी हैव टू टेक द log ऑफ 4 इन द बेस 4। चलो, अभी ये 2 भी पीछे है ना? 2 पीछे है, इसको आगे करते हैं। कैसे करेंगे आगे? 3 रेज टू 2 हो जाएगा, थर्ड रूल है ना? जो यस पीछे सर। है उसको ऊपर लेके आ जाते हैं। माइनस, यहाँ पे कैसे करेंगे? जो 5 पीछे ले। है उसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, साइन देखो, साइन वहीं छोड़ दिया, साइन नहीं लेकर आना है, ध्यान रखना आप। ठीक है, साइन लेकर आओगे तो फिर प्लस हो जाएगा, साइन लेकर आना नहीं है वैसे। ठीक है, तो फिर अभी क्या करोगे इसमें? देखो, जो जो एक ही बार में बता देता हूँ, एक्चुअली एक ही बार में होना भी चाहिए। अभी हम लोग जैसे स्मार्ट लोग एक ही बार में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी देखो यहाँ पे प्लस है बीच में, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 रेज टू 2। माइनस है तो सीधा डिवाइड करना है, 5 रेज टू 3। 3। हो गया। ठीक है ना? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log टू द बेस 4, अभी ये नंबर क्या हो जाएगा ये बता दो मुझे। 9 4 जा 36 है ना? 5 to the 15। 125। तो ये रहने दो ऐसे ही, ठीक है ना? सिंगल टर्म बोला है ना, सिंगल लॉगरिथम बोला हुआ है, तो ये सिंगल लॉगरिथम हो गया। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में करने का जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, चलो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा करोगे? मेरे हिसाब से एफ कर डालो। ठीक है, सर ये जो 2 है इसका क्या करेंगे? वही तो मैटर है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारे को? 2 + log 5 टू द बेस 3।
तो आपको वन का सॉल्यूशन पता है कि वन को कैसे करते हैं। टू में दिक्कत आ रही है ना। तो टू में यस सर। एक्चुअली वन छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। टू इज नथिंग बट टू इंटू वन। क्या प्रॉब्लम है। तो टू और वन को कैसे लिखेंगे हम, लॉग थ्री थ्री। टू द बेस थ्री, बिकॉज बेस इज थ्री, राइट। लॉग फाइव टू द बेस थ्री। अब इसको ऊपर लेके आ जाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग थ्री स्क्वायर टू द बेस विद थ्री प्लस लॉग फाइव टू फाइव। द बेस थ्री। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि प्लस है। तो नाइन फाइव ज़ा 45। हो गया, ठीक है। तो ये यस। इस तरह का टू रहेगा तो आप उसको वन अज्यूम करोगे उसके साथ है, और वन को फिर आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इस टू को ऊपर लेके आ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन। आप बाकी का तो कर लोगे मेरे हिसाब से, यस ऐसा सर। है नहीं कि हाँ। चलो इसमें क्या दिया हुआ है, if log 7 to the base 2 is p and log 3 to the base 2 is q, so they have given p and q and they're asking about, okay, we have to convert the given logarithmic term in terms of p and q, ठीक है। जो दिए हुए क्वेश्चन है उसको p and q में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस कैटेगरी को आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट्स से वी हैव log टू द बेस टू 21, ठीक है ना। अभी आपको ना 7 एंड 3 ढूंढना है, ठीक है ना। कहाँ पे log 7 टू द बेस 2 है एंड log 3 टू द बेस 2 है, यही पता लगाना है। तो ये कुछ है नहीं इसमें, देखो आप 21 को फैक्टराइज करोगे तो 7 इंटू थ्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। और यस जैसे सर। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो आप रूल ऑफ लॉगरिथम लगा सकते हो। सो log 7 टू द बेस 2 क्या लिखूँ, प्लस वेरी गुड, लॉग प्लस log 3 to the base 2। 3 to the base 2. So log 7 to the base 2 is basically p and log 3 to the base 2 is q. तो जो गिवन क्वेश्चन है वो एक्चुअली p P प्लस q है ना। plus sir। अभी कौन सा कर दो बता दो आप, h कर दूं h। h Yes तो sir। h तो ऐसे देखने से समझ में नहीं आ रहा है, करते हैं, ठीक है। 1 2। करने से शायद समझ में आ जाए, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, log 5.25 है ना, Yes sir। 5.25 टू द बेस 2, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे बताओ मुझे। डेसिमल है ना, डेसिमल तो कोई पसंद नहीं करता, तो उसको क्या कर देंगे हम, हटा के divide by 100। यस। सो 525 डिवाइडेड बाय 100। 100, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ओके, 105। Yes sir। डेसिमल ना हो लेकिन। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 105। 5 20। 20, फिर से करें, 21। ठीक है। ऐसा आप दिखाओगे नहीं, लेकिन ये मैंने ऐसे इलीगल तरीका दिखा दिया है। आप अलग अलग करोगे, फैक्टराइज करके फिर कैंसिल करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 21/4 टू द बेस 2, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, अब समझ में भी आ रहा है क्या है ये। सो log 21 टू द बेस 2 क्या करूँ, माइनस Minus। log 4 टू द बेस 2, ठीक है। Yes sir। अपने को हमेशा log 7 और log 3 की तलाश करना है, इसमें कहाँ 7 3 है वही ढूंढना है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 21 टू द बेस 2 तो पहले ही सॉल्व कर दिया है, पी प्लस क्यू है वो, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो। यस सर। तो पी प्लस क्यू है वो, आपको पता भी है। तो पी प्लस क्यू करेंगे उसको, अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो करेंगे उसको, माइनस इसको क्या कर सकता हूँ, log 2 द पावर 2 द बेस 2। एम आई क्लियर? यस सर। सो दिस विल बी पी प्लस क्यू, माइनस क्या हो जाएगा, 2 को पीछे ले आओ। 2p पी कहाँ से आ गया आपको, टू बाई ये टू टू ये लॉग विद बेस 2। तो वो तो 1 होता है ना, हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, पी p प्लस प्लस क्यू माइनस माइनस। 2। ठीक है, हमें तो सिर्फ पी प्लस क्यू चाहिए, कोई लॉग टर्म नहीं चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज क्या बोला है वो, राइट इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, कांस्टेंट चलेगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करो आप, मेरे हिसाब से आप जी कर दोगे, यस सर। करो। दीपांशु, कैलकुलेटर समझ में आ रहा है ना आपको, यस सर। मैनुअल गो थ्रू कर रहे हो ना कैलकुलेटर का? यस सर। अच्छा, इसका लॉग विद बेस 2। आंसर बता रहे हो डायरेक्ट? यस सर। क्या है? लॉग विद बेस 2, हाँ, 8 प्लस p क्या 8 प्लस? log 8 with base 2 ओके, plus p अच्छा, minus 2q। -2q, और ये क्या है? सर ये समझ नहीं आया। क्या बात है, मतलब ये वो नहीं हुआ। 8 क्या होता है, 8 क्या होता है, 8? 8 को मैं 2 के फॉर्म में 2q। लिख सकता हूँ। हम्म। 8 इज बेसिकली 2 क्यूब, है ना? यस सर। तो 3 पीछे चला जाएगा, सो log 2 द बेस 2 इज 1, है ना? तो ये यस सर। बेसिकली 3 है ना, समझ रहे हो कि नहीं आप? तो ये 3 प्लस पी माइनस 2 क्यू। यस सर। ठीक है, यही है आंसर, 3 प्लस पी माइनस 2 क्यू। ठीक है, अभी तो अप्लाई किया मैंने ये 2 वाला पार्ट, 4 था तो 2 रेस टू 2 कर दिया, 8 है तो 2 रेस टू 3 कर दूंगा, 16 रहेगा तो 2 रेस टू 4 कर दूंगा, बेसिकली 2 के ही पावर में लिखूंगा, है ना, 2 रेस टू ही लिखूंगा जो भी रहे, हम्म। ताकि वो log 2 to the base 2 become 1। ओके, ओके सर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन तो आपके पास भी है ना?
Yes, sir. हाँ ठीक है, तो अभी डायरेक्ट करते हैं। कौन सा कर दूं इसमें? Sir, H part. एच कर दूं? ठीक है, तो एच क्या है? लॉग वाई टू द बेस टू। अभी एच से आप डरने लगे हो। हाफ लॉग वी टू द बेस टू माइनस टू लॉग यू टू द बेस टू। करना क्या है? राइट वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। अच्छा, वाई को यू और वी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है। अब सिर्फ वो तीन ही तो रूल है ना? तीन ही रूल है अपने पास, इसके अलावा कुछ Yes, नहीं sir. है। आपको टेबल के बाय यूजिंग टेबल भी हम बहुत सारे, जो शुरुआत में आपको याद है मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिखा था और बोला था कि वी कैन सॉल्व द सच कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बाय यूजिंग लॉगरिथम वेरी इजीली। Yes, So sir. that is basically done by logarithmic table. Okay, there is a table available. ठीक है, अगर कैलकुलेटर है तब तो टेबल की आजकल जरूरत ही नहीं है, हम टेबल से करते थे, कैलकुलेटर महंगा होता था। तो टेबल से आप या कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हो लॉग इजीली। ठीक है, तो दोज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिकम सिंपल। ओके, तो तीन ही रूल ही है, लेकिन वो जब टेबल का यूज करना रहता तब कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा द लॉट ऑफ स्टफ आते हैं, वो थोड़ा समझाना भी डिफिकल्ट है और समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो वो है Yes. नहीं हमारे को, तो यू आर फॉर्चुनेट दैट। तो अभी क्या करेंगे, देखो इसको आप, ये हाफ है ना यहाँ पे पीछे, क्या करोगे? हाँ, देखो पहले Sir, पहले तो T. चेक कर लो कि सबका बेस टू है। ठीक है ना, Yes, ये sir. तो पहले चेक कर लो। और फिर हाफ पीछे तो क्या करोगे? सर आगे ले आएंगे। कहाँ आगे? नहीं, ऊपर बिठा देंगे। बी के बाद आगे आगे जाए। कहाँ लाओगे, ऊपर बिठाएंगे। ठीक है, यस सर। ऐसा बी रेस टू हाफ, फिर माइनस, इसको क्या करोगे? टू पीछे सी है, यू को यू के ऊपर। ऊपर। अब यू कुछ भी हो चलेगा, यू में भी मिक्सचर ऑफ नंबर, अंडरस्टैंड दैट। वो सब क्या ऊपर बैठ जाएगा वो, ठीक है, ब्रैकेट में आके। ठीक है, तो अभी ये तो चलो सब्ट्रैक्शन है बीच में, तब तो मेरे हिसाब से इसको डिवीजन कर देना चाहिए अंदर यस सर। लेकर। ठीक है, तो वी रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉग वाई टू द बेस टू। ठीक है, जैसा आ रहा है वैसे करते जा रहा हूँ, कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? यस। तो अभी ये दोनों टर्म इक्वल है, बेस भी सेम है। इसका मतलब क्या? जो जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं हम, वो भी इक्वल होगा, तभी तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना? तो y इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू v रेज टू हाफ अपॉन यू यू स्क्वायर। अब रहने दो इसको ऐसे, यू वी में ही तो लाना था। ठीक है, अगर थोड़ा सजाने का ही मूड हो तो इसको रूट वी कर दो और इसको यू स्क्वायर कर दो। ठीक है, कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, एच पूछा आपने ना? यस सर। तो मैं जी पूछूंगा, चलो जी करो। So 7 is equals to y is equals to वाई इज इक्वल टू 7 u square. 7
7 Yes, y sir. y is equal to 7 u square 7 u 7 b square b है ना वो। Yes, sir. Yes, sir. बराबर राइट है। तो y और राइट हैंड साइड क्या हो जा रहा है log 7 टू द बेस 7। तो ये v स्क्वायर हो जा रहा है तो 7v स्क्वायर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आई कर दो, नहीं आई नहीं जे कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। So y is equals to u y इज इक्वल टू u की power 1/2 ये रुको y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। हाँ, इन multiply v, 3. बस इतना ही Yes, है sir. और कुछ Yes, sir. नहीं। No, sir. नहीं नहीं, कुछ और होगा, ध्यान दो जरा। बताओ। सर यही लग रहा है y इज इक्वल टू u की पावर हाफ इंटू v। 3 into 3. हाँ तो 3 तो आपने बोला नहीं था ना। उसने कहा था पहले. कहा था। Yes, अच्छा, sir. मुझसे ही गलती हो गया, तो 3 मैंने नोटिस ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, सिंपल है ना। Yes, sir. चलो आगे बढ़े फोर्थ पे, बाकी कर लेना। Yes, sir. आपको तो हेल्प करने के लिए है भी, माइक से Yes, sir. आवाजें आते रहती है आपकी मिस्टर इंडिया की। अच्छा, तो कैसे करोगे बताओ फोर्थ का, कौन सा करें। Sir, D part. डी कर दो, ठीक है। Yes, sir. log 25 टू द बेस m अपॉन log 1/5 टू द बेस m। ठीक है, सिंपल है। इसको क्या करना, विदाउट कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करना है ना। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर देंगे, और कुछ जो भी कैंसिल होता होगा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 25 है वो मोस्टली आपको ना वो स्क्वायर टर्म दिया रहेगा। ठीक है, तो 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 स्क्वायर लिख सकते हो 5, कि नहीं। sir. बेस तो m है। इसको बताओ क्या करेंगे। यहाँ तो बेस m है, लेकिन ये 1/5 है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको समझाऊंगा कैसे करेंगे। 1/5 को कैसे हैंडल करेंगे। देखो, मुझे 5 ऊपर चाहिए, कैसे करोगे। अगर मुझे 5 ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, तो कैसे करोगे। 1/5 है ना। -1. यस, 5⁻⁻1, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका बताता हूँ इसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा, फिर आप दो पीछे ले सकते हो ना, जैसे Yes, आगे sir. करते हो वैसे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये -1 भी पीछे ले सकते हो। Yes, sir. तो -1 log Log 5. m, सॉरी, हाँ, log 5 टू द बेस m। तो देखो आप ध्यान से, ये दोनों टर्म कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है ना, इक्वल है, सेम टर्म है और प्रोडक्ट है।
बीच में मल्टीप्लीकेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझो। या तो दूसरा तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अपने को क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर क्या है, log 1 to the base m, है ना। तो इसको आप कैसे कर दो, वो सब्ट्रैक्शन का रूल लगा दो। सो दिस विल बी log 1 to the base m minus log 5 to the base m। डू यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। यस सर। सब्ट्रैक्शन का रूल लगा दिया ना। जैसे x बाय सर वाई था तो log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a होता है, तो वैसे ही यस log 1 टू द बेस m माइनस log 5 टू द बेस m। और मैंने आपको बताया एक चीज कि log 1 हमेशा 0 ही होता है, ठीक है ना। आप अगर log का ग्राफ बनाओगे तो 1 पे वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लो। तो ये 0 हो गया, और माइनस log 5 टू द बेस m बच गया, है ना। यस। तो यही चीज यहाँ पे देखो माइनस है, -log 5 टू द बेस m। बाद में आप कैंसिल करके आंसर आपको इसे मिलेगा। ठीक है, आप इसमें सी करो, चलो। सी तो मैंने ही कर दिया, नहीं सी किया ना, कौन सा, सर नहीं डी। डी किया मैंने। चलो सी कर यस। दो, सेम ही लग रहा है वो, कर दो फिर भी। तो -2। सी का हाँ सेम ही आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लॉगरिथम इन बेस 10। ठीक है, यस सर। लॉगरिथम इन बेस 10। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि बेस 10 ही है। ठीक है, अगर बेस हमने नहीं कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सो इट इज अज्यूम दैट द बेस इज 10। ठीक है, आपको कैलकुलेटर पे दो नोटेशन दिखेगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बार बार आगे की भी चीज थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि आप उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यही होता है जो आगे की तरफ सोचता है, आगे की तरफ पढ़ता है। ठीक है, तो देखो जब लॉग आप देखोगे, दो नोटेशन है कैलकुलेटर पे, एक लॉग है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ln है, वही उसी बटन पे है। एक सेकंड सर। सर ग्राफिक पे या साइंटिफिक पे? साइंटिफिक पे होगा। लॉग है और उसी में जो रहता है ना, मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं ना, तो ln भी होगा टाइप किया हुआ, है दिख रहा है। सर लॉग है, एलन नहीं ln दिख रहा। नहीं दिख रहा, एक मिनट जरा, होना तो चाहिए। एक मिनट में आपको, मेरे पास कैलकुलेटर है, NSC सॉफ्टवेयर है मोबाइल में। ठीक है, अच्छा होता है, आसपास भी ढूंढोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सर ऐसे है एक। हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ तो बाजू में है ना, बाजू सर में, एक तो ये वाला हाँ उसके बाजू में देख लो। और एक ये वाला। नहीं नहीं भाई, उसके जस्ट राइट में देखो, लॉक के राइट में क्या लिखा है। हाँ, क्या है, एलन। एलन है ना। यस सर। हाँ तो वैसे ही रहता है, तो एलन भी वो भी लॉग ही है। ठीक है, यस सर। एक अगर LOG लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि बेस 10 है। ठीक है, और सिर्फ LN लिखा हुआ है, ये भी लॉग है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल नेचुरल। लॉग। और इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, ई होता है, ई। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, ई होता है। तो अब ये आप इन्वेस्टिगेट करो क्या होता है, ये सारी बातें एक्स्ट्रा में क्यों है, क्योंकि
आगे आएगा ना आपको 11 ट्वेल्थ में, यही सब तो है दुनिया भर का चीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल लॉग ही पढ़ना है आपको कैलकुलस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट करो, खुद से थोड़ा एफर्ट डालो, और जो करिकुलम है उसके अलावा भी पढ़ा करो। ठीक है, तो यस अभी सर। लॉग है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वो क्या होता है, बेस 10 ही होता है हमेशा। चलो अभी हम ना पावर लेते जाते हैं। तो अगर जैसे मान लो 10 है, तो 10 को आप कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे? हाउ वुड यू राइट 10 एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 10 रेस टू 1 लिखोगे ना? यस सर। हाँ, 10 रेस टू 1 लिखोगे। अगर 10 100 है तो इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे? 10 raised to 2। 10 रेस टू 2 लिखोगे। अब ये एरो जो दिखा रहा हूँ वो मैं इक्वल टू करता हूँ। अगर 1000 है तो इसको आप कैसे लिखो? 10 रेस टू 3। 10 raised to 3। ठीक है, तो अभी इसको आप मुझे लॉग में कन्वर्ट करके बताओ, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो दे दिया मैंने आपको, आप लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? Log 10 with base 10 is equals to 1। यस, log 10 to the base 10 इज इक्वल टू 1। इसको करो, Log 10 base 10 200 100। is equals to 2। सो log 1000 10 टू द बेस 10 इज is इक्वल टू 3। 3। ठीक है ना? तो ये बातें तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब ये log 1000 है, तो log 1000 कैन बी रिटर्न एज log 10 रेस टू 3 Yes sir। टू द बेस 10। तो आप ये 3 को हमेशा पीछे ले लेते हो, तो Yes 3 log 10 टू द बेस 10, एंड दिस इज 1। सो द आंसर इज 3। ठीक है, 3। सो एनी वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज 10 का जो भी पावर आता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो लॉग लॉग वैल्यू रहता है उस नंबर का, बेस 10। ठीक है, Yes sir। हाँ, तो बेसिक रूल तो मालूम ही है। अभी एक काम करते हैं, आ, चलो एक्सरसाइज 31D पे आ जाए डायरेक्ट। Yes sir। एक क्वेश्चन समझाना है इस पे पहले, जो टाइप है एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप है। जैसे कि ये सॉल्व करके दिया हुआ है आपके बुक में ये, ठीक है ना? तो इसमें क्या है मैं जरा ये समझा दूं, फिर आप एक्सरसाइज पे जाते हैं। यूज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है क्या बेसिकली, है ना? ए इज इक्वल टू 10 रेस टू लॉग ए। बात समझ रहे हो आप? ए इज इक्वल टू 10 रेस टू लॉग ए। मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ पहले। तो ये लॉग, देखो 10 रेस टू लॉग ए जो है, 10 रेस टू लॉग ए, अभी मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये y है, ये a नहीं है। लेट्स कंसिडर दैट इज y। ओके, आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट एज a डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला। सो मैंने एक क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, है ना, y ले लिया। तो मुझे तो प्रूफ करना है कि ये एक्चुअली a ही है, तो मैं इसको y ले लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करो, आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको सिर्फ एक टर्म समझना, ये जस्ट अ नंबर है। तो हाउ वुड यू कन्वर्ट इट इनटू लॉग फॉर्म बाय डेफिनेशन? Log y with base 10 is equals to log की power a। पावर, log a। हाँ, लॉग ए। a। तो लॉग ए मतलब बेस 10 ही है वो, अगर नहीं कुछ लिखा है तो क्या Yes है? sir। 10 है, base बेस 10। 10 है। हाँ, तो वहाँ पे भी मैं 10 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपको क्या दे रहा है? ये एक्चुअली y इज इक्वल टू ए ही दे रहा है ना, Yes sir। क्योंकि दोनों का लॉग वैल्यू सेम है। इट मीन्स द नंबर आर ऑल्सो इक्वल। तो y इज इक्वल टू ए। तो मैंने y लिया था, इससे अच्छा तो मुझे a लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो उसका वैल्यू a ही है एक्चुअली, है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी बन गया है, और एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे ना, जो मतलब अगर ये प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करोगे तो फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी क्या है, a इज इक्वल टू लॉग
रेज टू लॉग ए टू द बेस 10। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है। यस सर। अगर मैं बेस मान लो इसका 5 ले लूं और यहाँ पे भी लॉग बेस 5 ले लूं, तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज नथिंग बट ए ओनली। बात समझे? यस सर। क्योंकि ये प्रूफ किया ना हमने ऑलरेडी यहाँ पे। y is equals to। हाँ, तो अगर मान लो अगर बेस 7 है या ई है या कुछ भी और नंबर है, तो भी वो ए ही होगा। लेकिन अगर मान लो 7, एक का बेस 7 है और एक का बेस 10 है, तब वो ए नहीं होगा। हम्म, ये बात ध्यान में रखो आप। ये दोनों का बेस सेम हो रहा है, इसके लिए वो ए बन रहा है। और कैसे बन रहा है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आप इसको तो डाउनलोड कर लो ये चीज़। रुको रुको, ये कट कट करने दो पहले, नहीं तो कल जाके फिर बोलो इक्वल है। डन सर। डन, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कितने एक्सरसाइज है इसमें? D1 D2 बहुत सारे। चलो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको कैसे करोगे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। वी आर गिवन जस्ट 8, 10 का पावर लिखना है ना? 10 के यस। पावर में लिखना है। तो क्या कर दोगे? सीधी सी बात है, दिस 8 इज इक्वल टू 10 10 टू द log पावर log 8 8 टू द बेस 10। is 10। अभी कैलकुलेटर निकालो, उसका काम आ गया है, क्योंकि 10 के पावर में लिखना है। तो log 8 का वैल्यू क्या है वो बताओ। चलो अभी मैं बेस नहीं लिखूंगा, आपको अज्यूम करना है कि वो बेस 10 ही होगा। ठीक है, छोटा 10 लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो log 8 का वैल्यू क्या होगा? So 0.903। 903। 0.903। सो 8 इज इक्वल टू, 8 को अगर आपको लिखना है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज टू 9। 0.903 होता है। तो इन्होंने यही तो बोला है कि आपको 10 के पावर में लिखना है ना? यस So सर। I think you just use these property to solve 31 D1 D2 and there is nothing else in this. Okay, अभी आप यस। मेरे को मिलोगे नेक्स्ट टाइम तो आप D1 D2 से डाउट पूछोगे, ओके सर। राइट? यस सर। एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 31E, और वो क्या है, रिव्यू सेट है, यस वो फिर खत्म कर लेंगे, चैलेंज है। ठीक है, तो ये 3 चीज रह जाएगा। तो आप D1 D2 खत्म करके रखो and श्योर you सर। ask your doubt in next class. Okay, यस सर। bye bye. बाय सर।